Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Asia Amreen Gul from Chemistry Department of Army Public School and College, Fort Road, Rawalpindi. I'd like to welcome you all in AppSec online support program of chemistry for grade 12. This is lecture number 3 of week 6 in continuity with our chapter number 16, that is hydrocarbons. The topic which we are going to learn today is radical chain mechanism, and this is given at page number 117 of your book. Before starting our topic, let's have a look at our learning objectives first. By the end of this lesson, you will be able to understand substitution reactions, halogenation of alkane as an example of substitution reaction. You will be able to understand the definition of mechanism and steps to be followed in organic chemistry for writing an appropriate mechanism. And in the end, the main topic, which is the radical chain mechanism and its 3 steps, namely initiation, propagation, and termination. Alkanes are very unreactive compounds in general. Two main reasons which we had discussed earlier are strong sigma bond, means sigma bonds are inert, they are very strong, they are difficult to break, and second is the non-polar nature of sigma bonds. There are no partial positive or partial negative ends to attract a nucleophile or electrophile. Means neither a nucleophile nor a electrophile can attack on these bonds. That's why alkanes are overall inert compounds. However, they may undergo two types of reaction, to combustion reaction and the substitution reaction. Combustion reaction is basically the reaction of alkane with oxygen, either in excess or in limited supply of oxygen. Combustion may be complete or incomplete, while substitution reaction, which will be discussed further, in this reaction alkanes react with halogens, and two important halogens are chlorine and bromine. Proceeding to our today's lecture, let's understand the definition of substitution reaction first. What are substitution reactions? These are the reactions in which one atom in a molecule is replaced by another atom or group of atoms. Simplest example is the reaction of alkanes with halogens. In these given examples, you can see that methane is reacting with chlorine to form chloromethane and HCl, and in another example, ethane is reacting with bromine to form bromoethane and HBr. In both of these examples, basically hydrogen atom of alkane is replaced by the halogen atom. In this example, chlorine has replaced hydrogen to form chloromethane, and in this example, bromine has replaced hydrogen of ethane to form bromoethane. This type of replacement is basically termed as substitution. The substitution reaction between alkane and halogen is also called halogenation reaction. The important events which take place in alkane molecule during this reaction are the breakage of CH bond and the formation of CX bond. Generally, this reaction can be written as follows. Alkane, the general formula of alkane is RH. It reacts with X2. X2 is general formula of halogens to form alkyl halide and halogen acid. Rx is representing here alkyl halides, that in this reaction the product form is always an alkyl halide. Along with the side product, halogen acid is formed. Next are the conditions which can alter the products formed in halogenation reaction. If chlorine is present in limited supply, then the product form is usually chloromethane. While if the chlorine is present in excess, then a mixture of products can be formed.
मिक्सचर में क्या क्या होगा हमारे पास, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड along with हैलोजन एसिड। तो ओवरऑल ये हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कितना क्लोरीन यूज़ कर रहे हैं। ईदर वी आर यूजिंग क्लोरीन इन लिमिटेड सप्लाई और इन एक्सेस। लिमिटेड सप्लाई में क्या होगा कि हमारे पास जितना भी अवेलेबल क्लोरीन होगा और मीथेन हमारे पास एक्सेस अमाउंट में अगर अवेलेबल होगा तो मीथेन क्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल एट वन इंस्टेंट विल कोलाइड विद मीथेन मॉलिक्यूल and will replace its one of its hydrogen and will form क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन बनाने के बाद हमारे पास क्लोरीन रिएक्शन मिक्सचर में से ख़त्म हो जाएगा। फर्दर मतलब कि आप मज़ीद अगर हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कराने इस प्रोडक्ट में से, तो आपको मज़ीद क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट कराना है, तभी ये फर्दर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा क्लोरीन। लेकिन क्योंकि क्लोरीन हमारे पास लिमिटेड सप्लाई में होगा, फर्दर रिएक्शन करने के लिए क्लोरीन अवेलेबल नहीं होगा, तो हमारा रिएक्शन इसी प्रोडक्ट पे स्टॉप हो जाएगा। बट इफ़ द क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, उसमें क्या होगा कि ओवरऑल एट वन इंस्टेंट मीथेन विल बी कन्वर्टेड टू क्लोरोमीथेन, और उसके बाद मतलब जितना भी मीथेन आपने ऐड किया वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया क्लोरोमीथेन में, बट स्टिल क्लोरीन इज प्रेजेंट। इट कैन फर्दर सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन इन क्लोरोमीथेन एज वेल। तो वो फिर क्या करता है कि क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, क्लोरोमीथेन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनको रिप्लेस करना शुरू कर देता है, उनको सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देता है। एज अ रिजल्ट क्लोरोमीथेन को कन्वर्ट कर देता है क्लोरोमीथेन के मॉलिक्यूल्स को डाइक्लोरोमीथेन। और इसी तरह से ये सब्स्टिट्यूशन होती रहती है अनटिल के ऑल फोर हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो जाते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। In this way, overall, basically, the concentration of chlorine used affect the products formed in the halogenation reaction of alkanes. In halogenation of alkanes, as I have told you earlier, that two bonds are mainly involved from alkane molecules. That CH bond is broken and CCl bond और CX bond is formed. ओवरऑल अगर हम रिएक्शन में देखते हैं तो हमारे पास टू ही बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और टू ही बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं हमारे पास, एल्केन्स में उसका CH बॉन्ड ब्रेक होता है और हेलोजेंस का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एंड एज अ रिजल्ट एल्केन में CX बॉन्ड, इसको हम कह सकते हैं CCl बॉन्ड फॉर्म होगा और इसके अलावा HCl जो कि बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनता है वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन, उसमें भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो ओवरऑल टू बॉन्ड्स पूरे अगर हम रिएक्शन को देखें तो टू ही बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, टू ही बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन सीम्स टू बी एन आइडियल केस फॉर मैकेनिस्टिक इन्वेस्टिगेशन। Next, the reactivity of halogens decreases in the following order. The reactivity of fluorine is greater than chlorine, which is greater than bromine, and which is greater than iodine. इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एल्केन्स के लिए, और इतना रिएक्टिव है जैसे फ्लोरीन का जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोसिवली, आपके पास एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। फ्लोरीन इज सो एक्सप्लोसिवली रिएक्टिव दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये नॉर्मल लैब कंडीशंस में इन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो इसलिए रिएक्शन लैब में नहीं कराया जाता। जबकि आयोडीन का है, दैट इज़ आयोडीन इज़ जनरली अनरिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे एल्केन्स के साथ। तो दैट्स वाई ये रिएक्शन भी हम लैब में नहीं कराते। तो वी आर लेफ्ट विद जस्ट टू हैलोजेंस, दैट इज़ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और ओवरऑल हम इट मीन्स के क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन स्टडी करेंगे या ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन स्टडी करेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट, एनर्जी इनपुट इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज़ नेसेसरी। कि ज़ाहिर है जब आपने बॉन्ड ब्रेक कराना है तो बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। और इस रिएक्शन में भी जिस तरह से कंबस्शन में हमें इनिशिएट कराना पड़ता है, एक दफ़ा फ्लेम देना पड़ता है उस रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, तो सेम इज़ द केस है कि हमें हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में डिफ्यूज सनलाइट हम फॉल कराते हैं रिएक्शन मिक्सचर पे इन ऑर्डर टू इनिशिएट द रिएक्शन। नेक्स्ट यू मे कम अक्रॉस with the types of carbon in organic compounds, कि हमारे पास organic compounds में
तीन तरह के कार्बन हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो ग्रीन कलर से कार्बन है ये इनकी बात हो रही है यहाँ पे कि ग्रीन कलर से जो शेड किया गया कार्बन, दिस वन इज द प्राइमरी कार्बन। क्यों प्राइमरी कार्बन है? बिकॉज इट इज बॉन्डेड टू वन अदर कार्बन एटम। कि ऐसे तमाम कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप किसी भी कार्बन को प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी क्लासिफाई कर सकते हैं depending upon its bonding with other carbon atoms. If it is bonded to one carbon atom, then it is called primary carbon atom. If it is further bonded to two carbon atoms, then it is called secondary carbon atom. And if it is bonded to three carbon atoms, then it is called tertiary carbon atom. मतलब जो green से show हुए हैं, this one is primary, secondary, tertiary. Bonded to one carbon atom, bonded to two carbon atom, bonded to three carbon atoms. और जब हम एल्केन्स की बात करते हैं तो एल्केन्स में क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हो रही है, उसी रेफरेंस से हम हाइड्रोजन्स को भी क्लासिफाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो कार्बन है, इट इज़ फर्दर बॉन्डेड टू वन कार्बन एटम, दिस कार्बन ऑल्सो इज बॉन्डेड टू वन कार्बन एटम ओनली, एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो बॉन्डेड टू वन कार्बन एटम। तो ये जो हाइड्रोजन्स हैं जो इन कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन्स, क्योंकि ये किस कार्बन के साथ अटैच है? प्राइमरी कार्बन के साथ। ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये फर्दर तीनों कार्बन जो हैं फर्दर जस्ट एक एक कार्बन से ही अटैच्ड हैं। हर एक को इंडिविजुअली देखना है आपने कि ये कार्बन इसके साथ अटैच्ड है, ये कार्बन भी इसके साथ अटैच्ड है, और ये कार्बन भी फर्दर एक के साथ ही अटैच है, और मज़ीद इसके साथ बॉन्डिंग में कोई और कार्बन मौजूद नहीं है। तो ये तीनों कार्बन क्या है? प्राइमरी कार्बन। जबकि हम इसकी बात करते हैं तो ये कैसा कार्बन है? इट इज़ फर्दर बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम, तो ये कौन सा है? सेकेंडरी। और ये कौन सा है? टर्शरी। तो जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन, और जो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन टर्शरी कार्बन के साथ अटैच हैं, दे आर tertiary hydrogens. तो ओवरऑल टर्शरी हाइड्रोजन्स जो हैं वो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट होते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और आखिर में है मिथाइल। मिथाइल का यहाँ पे मतलब है कि द हाइड्रोजन विच इज़ बॉन्डेड टू डायरेक्टली टू वन कार्बन, मतलब कि ओवरऑल दिस द हाइड्रोजन विच इज़ बॉन्डेड टू मिथाइल ग्रुप, उसके लिए इन्होंने मिथाइल की टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। ओवरऑल बॉन्ड एनर्जीज दी गई हैं कि ये सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड है इस हाइड्रोजन का, टर्शरी हाइड्रोजन का, और इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल दिस विल बी ब्रोकन फर्स्ट, and as a result the reactivity of this hydrogen is highest, कि इसकी reactivity सबसे ज़्यादा है। और इसी रेफरेंस से हम कहते हैं कि इसी रेफरेंस से हमारे पास ये ऑर्डर बनता है दैट द रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी इन एल्केन्स, द टर्शरी हाइड्रोजन विल बी इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड फर्स्टेस्ट, एंड देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और लास्ट में हमारे पास कौन सा वाला हाइड्रोजन आता है? द हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू द मिथाइल ग्रुप। मतलब दिस कार्बन कांट बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इस कार्बन को जो एक सिंगल कार्बन एटम होता है उसको हम मिथाइल कहते हैं। तो उस रेफरेंस से जो मिथाइल के साथ हाइड्रोजन एटम होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, वो सबसे लास्ट में रिप्लेस होगा बाय द हैलोजन एटम। रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? द मोस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज अ स्टेप बाय स्टेप पाथवे फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को स्टेप्स में लिख देते हैं कि पहले ये स्टेप होगा, बाद में ये स्टेप होगा, काइनेटिक्स में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है, स्टेप वाइज राइटिंग रिएक्शन इन स्टेप वाइज वे इज कॉल्ड इट्स मैकेनिज्म। और वो क्या शो करता है कि पहले बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक हो रहा है, कौन सा फॉर्म हो रहा है। ओवरऑल स्टेप वाइज जब आप रिएक्शन को लिख देते हैं इन ऑर्डर इन विच दोज इवेंट्स आर हैपनिंग, कि बॉन्ड ब्रेकिंग पहले हो रही है, देन फॉर्मेशन हो रही है, तो ओवरऑल जब आप इवेंट्स को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग के, तो दैट इज़ कॉल्ड द रिएक्शन मैकेनिज्म। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है दैट वी हैव टू शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ एरोज। के मैकेनिज्म में सिर्फ हमने स्टेप वाइज रिएक्शंस को नहीं लिखना होता, हमने मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करना होता है विद द हेल्प ऑफ एरो। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप के, यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज टाइप ऑफ एरोज,
रेजोनेंस एरो है हमारे पास, जिसमें दोनों साइड्स पे आपके पास इस तरह से एरो का निशान बना होगा। इसको हम रेजोनेंस मतलब कि रेजोनेंस शो करने के लिए शो करते हैं इस एरो को। इक्विलिब्रियम शो करने के लिए हम रिवर्सिबल रिएक्शंस में ये एरो लगाते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट सिंपल एरो जो कि हम रिएक्शंस में यूज़ करते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट में कन्वर्जन दिखाने के लिए। Full headed arrow and half headed arrow, these two arrows are important with reference to the mechanism of the reaction। तो हमारे पास जो रिएक्शन मैकेनिज्म है हैलोजिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि हमने रिएक्शन हैलोजिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना है। यहाँ पे एक हैलोजिनेशन रिएक्शन को स्टेप वाइज लिखना है। तो ओवरऑल हमारे पास जो हैलोजिनेशन रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म प्रिडिक्ट किया गया, दैट इज़ अ रेडिकल चेन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग न्यूट्रल इंटरमीडिएट सच एज फ्री रेडिकल्स। कि हमारे पास इसको रेडिकल चेन मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जब हम स्टेप वाइज रिएक्शन को लिख रहे होते हैं तो हम उसमें स्टेप वाइज लिखने में अंडरस्टूड बात है कि उसमें इंटरमीडिएट्स लिखते हैं, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं दे आर यूजुअली फ्री रेडिकल्स, और इसी बेस पे इसका नेम है रेडिकल चेन रिएक्शन और रेडिकल चेन मैकेनिज्म। एरोज को फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हमारे पास एरो यूजुअली जब जो लगाया जाता है, एरो की जो टेल है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर को शो करती है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ उसका हेड होता है। ठीक है, हमेशा जब भी आप एरो लगाएंगे लाइक इन दिस एग्जांपल कि ओवरऑल यहाँ पे जो ये रेड कलर का एरो ये क्या शो कर रहा है कि पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो OH के पास थे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर OH के पास था, इसने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर दिया किसके पास, हाइड्रोजन आयन के पास। तो उस रेफरेंस से हमारे पास इट मीन्स कि दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है ओवरऑल। तो इस शेयरिंग की वजह से इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया और एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली कर्व्ड एरो की फॉर्म में हम शो करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमेशा मैकेनिज्म में शो की जाएगी विद द हेल्प ऑफ एरो। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस आता है कि हाफ हेडेड एरो और फुल हेडेड एरो में क्या डिफरेंस है। तो फुल हेडेड एरो जब भी आप लगाते हैं तो फुल हेडेड एरो आपके पास एक पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट को शो करता है। कि फॉर एग्जांपल अब ये एरो आपके पास यहाँ से इसके पास जा रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है कि ये जो पूरा पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर का, ये इस हाइड्रोजन एटम ने अपने पास रख लिया। एज ए रिजल्ट जब ये पूरा पेयर इसने ले लिया तो इसके पास आपके पास इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जब ये पूरा पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो दोनों के दरमियान बॉन्ड क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड सी बात है, ब्रेक हो जाएगा। इसके पास पूरा पेयर आ गया, मीन्स एक अपना इलेक्ट्रॉन भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इसका इलेक्ट्रॉन भी उसी ने ले लिया तो इसके पास डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो जो हमारे पास फुल हेडेड एरो होता है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है। जब भी हमने इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ फुल हेडेड एरो। नेक्स्ट है हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो किसको शो करता है, लाइक इन दिस एग्जांपल कि हाफ हेडेड एरो जब भी हमने किसी मैकेनिज्म में लगाया हुआ होगा, हाफ हेडेड एरो मींस इट शोज द मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। कि आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब ये लाइन जो है इट इज शोइंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है हमेशा, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपके पास हाफ एरो इधर है और हाफ एरो इधर है। दिस शोज के इस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। जब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे तो बोथ विल बिकम फ्री रेडिकल। मतलब कि ये आपके पास जो हाफ हेडेड एरो है वो शो करता है द मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ओनली, एंड फुल हेडेड एरो शोज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो उस रेफरेंस से हमारे पास जब हाफ हेडेड एरो किसी भी रिएक्शन में लगाया जाएगा तो उसके रिजल्ट में हमेशा जो स्पीशीज बनेंगी वो यूजुअली फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारे पास। एज अ रिजल्ट हमारे पास फ्री दिस इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम दैट आपके पास हाफ हेडेड एरो डाउनवर्ड्स है, हाफ हेडेड एरो अपवर्ड्स है। तो उस रेफरेंस से
both hydrogen atoms are having one electron each, bond break हो जाएगा दोनों में and both will become free radicals. Next important terminology जो यहाँ पे आएगी mechanism में, that is homolytic cleavage and heterolytic cleavage. Homolysis and heterolysis भी बोला जाता है इसको. Homolysis और homolytic cleavage क्या है? Homolytic cleavage is basically the breaking of bond in such a way that one of the the two atom gets same number of electron. ठीक है, कि आपके पास इक्वली डिवाइड होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन, तो उसके रिजल्ट में जो स्पीशीज बनती हैं वो यूजुअली एक जैसी बनती है, मतलब दोनों ही फ्री रेडिकल बनते हैं. तो उस केस में इसी बेस पे इसको कहा जाता है होमोलिटिक, मीन्स द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ स्पीशीज, मतलब दोनों ही फ्री रेडिकल बन गए, दोनों ही हाईली रिएक्टिव हो गए. दैट्स वाई तो होमोलिटिक क्लीवेज ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. जबकि हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करेंगे, हेट्रोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में क्या होता है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइंस, कि आपके पास पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसी एक एटम के पास शिफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर ए ले ले, और आपके पास ए जब इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो एक अपना भी इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, उसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और बी का इलेक्ट्रॉन भी क्योंकि ए ने ही ले लिया, उसके पास डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए बी पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव. अगर आपके पास सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि पूरा पेयर कौन रख ले? बी. तो जब पेयर ले लेगा वो, तो उस केस में क्या होगा कि एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज -1 आ जाएगा. जब भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके पास आता है किसी भी एटम में, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गिव्स अस -1 चार्ज. तो A प्लस क्यों हो गया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया है? B के पास. तो ओवरऑल इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी. तो इस तरह से जब भी क्लीवेज होती है बॉन्ड की, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइंस, अनइक्वल डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. ठीक है, तो इस तरह की जो क्लीवेज है इसको हम कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज. इसके अलावा जो हाफ हेडेड एरो है इसको हम फिश हुक भी कहते हैं. और यूजुअली होमोलिसिस मीन्स के 2 हाफ हेडेड एरोज आर नीडेड फॉर 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स. कि हमेशा जब भी आपने हाफ हेडेड एरो एक नहीं लगा सकते, हमें पता है कि ओवरऑल जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होना है तो आपने हमेशा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अगर आप हाफ हेडेड एरो एक लगा रहे हैं तो इट मीन्स आप एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो कर रहे हैं. व्हाट अबाउट द अदर? दूसरा कहाँ जाएगा? तो हमेशा जब भी हाफ हेडेड एरो लगाए जाएंगे तो वो 2 लगाए जाएंगे, कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, 1 एरो शोज मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, द अदर एरो शोज मूवमेंट ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन. के 1 इलेक्ट्रॉन इज मूव टूवर्ड्स A एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज मूव टूवर्ड्स हैज मूव टूवर्ड्स B. जबकि जब हम इसकी बात करते हैं, फुल हेडेड एरो जो लगाया जाता है वो हमेशा एक ही लगाया जाता है. मीन्स कि पूरा जो पेयर है वो किसकी तरफ आ गया है? बी की तरफ. एज अ रिजल्ट हमारे पास आइंस बन गए हैं ए प्लस एंड बी नेगेटिव. हियर इन दिस डायग्राम अगेन द सेम फिनोमेना इज शोन. रेडिकल चेन मैकेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हमने एल्केन्स की जो रिएक्टिविटी पढ़ी थी पीछे. तो एल्केन्स में हमने पढ़ा था कि ओवरऑल एल्केन्स में जो बॉन्ड्स हैं वो 2 तरह के होते हैं. CH बॉन्ड होता है, CC बॉन्ड होता है. तो उस रेफरेंस से हमारे पास इन बॉन्ड्स की फिर हमने नेचर स्टडी की कि ये CC बॉन्ड तो अंडरस्टूड है, नॉन पोलर है. व्हाट अबाउट CH बॉन्ड? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नॉट लार्ज इनफ, जिसकी वजह से कि पोलैरिटी इंड्यूस हो सके. तो ओवरऑल CH बॉन्ड को भी हमने कैसा क्लासिफाई किया था कि ये बॉन्ड्स क्या हैं? दोनों ही बॉन्ड्स क्या हैं? नॉन पोलर हैं. और इसके अलावा जब नॉन पोलर होंगे तो इट मीन्स देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज, देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरियाज. इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज अगर होते हैं तो ज़ाहिर उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है. अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरियाज होते हैं किसी भी बॉन्ड में तो उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. तो इट मीन्स ना आपके पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, ना इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकता है. देन व्हाट टू डू? फिर एल्केन्स के साथ कौन रिएक्ट करेगा? तो एल्केन्स की फिर इसका मतलब है कि एल्केन्स को अगर हम रिएक्ट कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि एल्केन्स के पास कोई बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होंगी,
बहुत हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होंगी तभी एल्केन्स उनके साथ रिएक्ट करेंगे। तो वो रिएक्टिव स्पीशीज कौन सी हैं? दोज रिएक्टिव स्पीशीज आर फ्री रेडिकल्स, कि फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, और फिर वो मतलब कि एल्केन्स हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट, कि अगर आप फ्री रेडिकल्स को फ्री रेडिकल्स जनरेट करा देते हैं एल्केन के कंटेनर में जिसमें मैंने एल्केन को प्लेस किया हुआ है, तो उस केस में एल्केन्स आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस बट टू रिएक्ट। तो हमारे पास मीन्स कि एल्केन में जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है उसके लिए जो हमने मैकेनिज्म प्रेडिक्ट किया है कि एल्केन्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मतलब कि जब हम कह रहे हैं ओवरऑल नॉन पोलर बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो सकता, तो उस रेफरेंस से देन हाउ डू एल्केन्स रिएक्ट विद हेलोजेंस? द रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू रेडिकल चेन मैकेनिज्म। रेडिकल मीन्स कि फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्री रेडिकल्स को बताएंगे। फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स आर द एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है। जबकि हम चेन रिएक्शन की बात करेंगे, व्हाई दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन, तो चेन रिएक्शन में क्या है कि चेन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कि फॉर एवरी रिएक्टिव स्पीशीज यू स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू वन इज जनरेटेड एट द एंड, दिस कीप द प्रोसेस गोइंग। कि आप एल्केन मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आप एक दफ़ा जनरेट करा देते हैं तो उसके बाद वो खुद ब खुद जनरेट होते रहते हैं। उस रिएक्शन में एक चेन है जो खुद ब खुद चलती रहती है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। The reaction mechanism has three distinct steps: initiation, propagation, and third one is termination. First of all, initiation क्या है? Initiation involves production of free radicals in the presence of sunlight or heat by breaking up of weak bond in halogen molecule. कि halogen molecule का bond बहुत weak है, हम इस पे क्या फॉल कराते हैं, या डिफ्यूज सनलाइट, यूवी रेज या हीट के थ्रू। बेसिकली वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड। एज अ रिजल्ट दिस बॉन्ड ब्रेक्स होमोलिटिकली। होमोलिटिकली जब ब्रेक करेगा इट मीन्स दैट द पेयर इज शिफ्टेड towards the pair is basically distributed evenly. One electron is single electron is shifted at one bromine atom, the other electron is shifted towards other bromine atom. In this way two bromine free radicals are produced. अब हम इसको होमोलिटिक क्लीवेज क्यों कहते हैं? अगेन द स्पीशीज आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, क्योंकि दोनों ही फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों ही क्या हैं, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाईली रिएक्टिव हैं और हाईली अनस्टेबल हैं। तो एक तरह से हमने ओवरऑल इनिशिएट करा दिया रिएक्शन में। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमने जैसे ही सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट पास की या हीट प्रोवाइड की, तो हमने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज जनरेट करा दी। नेक्स्ट फिर क्या होता है? वन थिंग टू नोटिस हेयर इज कि ओवरऑल इनिशिएशन में हम क्या कर रहे हैं, हम नॉन रेडिकल्स मतलब जो आपके पास मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहे हैं खुद से रेडिकल्स में। नेक्स्ट क्या है? प्रोपगेशन। प्रोपगेशन और चेन प्रोपगेशन भी इसको हम कहते हैं। कि प्रोपगेशन जैसे भी मैंने बताया कि ओवरऑल चेन प्रोपगेशन हम क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास रिएक्शन में जो रिएक्टिव स्पीशीज हैं वो खुद ब खुद ही जनरेट हो रही होती हैं। प्रोपगेशन बेसिकली टेक्स प्लेस इन 2 steps. In first step the arrows here show that the bromine share offers its single electron to the hydrogen atom, and hydrogen takes its one electron from this bond, and in this way these pair of electron mean one electron is coming from this bond and one electron of bromine free radical. Both of these atoms share this electron pair, and as a result a covalent bond is formed between the two. And because of the shifting of this single electron to this carbon, this we are having here a methyl radical.
कि मिथाइल रेडिकल हमारे पास प्रोड्यूस हो गया, देन इन स्टेप 2 दिस मिथाइल रेडिकल विल फर्दर कंबाइन विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल जिन स्प्लिटिंग नहीं हुई अभी तक, मतलब कि ओवरऑल आपने जब आप सनलाइट फॉल कराते हैं तो एकदम से सारे मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल्स में नहीं कन्वर्ट हो जाते, सम ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन इनटेक्ट देयर, तो वो ही मॉलिक्यूल फिर इन मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट ये एरो क्या शो कर रहे हैं, दैट वन इलेक्ट्रॉन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉन्ड इज basically shifted here, and as a result these two atoms share this electron pair and covalent bond is formed between the two and methyl bromide is formed. And what about this arrow shows the movement of one electron to this bromine atom, and as a result of this movement of electron this bromine gets converted to bromine free radical. अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज ब्रोमो मीथेन वो बना है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारा साइड प्रोडक्ट होता है वो भी HBr वो भी बन चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ वी कैन ऑब्जर्व दैट क्या हुआ इन स्टेप 1 वी स्टार्टेड विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल कि हमारे पास ब्रोमीन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम HBr एंड मिथाइल रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद सेकेंड रिएक्शन में जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है वो फिर क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है अगेन फर्स्ट स्टेप में, कि आपके पास अगेन ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि ओवरऑल रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये फर्दर कंज्यूम होगा, मजीद मीथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइल रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, मिथाइल रेडिकल फर्दर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, एंड इन दिस वे आपके पास एक चेन ऑफ रिएक्शन चलती रहेगी। ओवरऑल आपके पास रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड chain propagation. Propagation means to go on. The reaction will basically proceed on its own. कि आपको दोबारा से उसमें ओवरऑल एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, चेन की फॉर्म में ही ये रिएक्शन प्रोसीड करता रहता है। तो बेसिकली इसमें अगर हम देखते हैं तो दोनों स्टेप में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपने स्टार्ट किया एक रेडिकल से एंड हुआ एक रेडिकल पे ही, इसमें भी आपने एक रेडिकल से स्टार्ट किया और एंड हुआ एक रेडिकल पे, ठीक है। क्या हम ये कहते हैं कि चेन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टिव स्पीशीज जो हैं वो कंज्यूम भी होती हैं लेकिन साथ साथ रिप्रोड्यूस भी होती जाती हैं, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज नेम्ड एज चेन प्रोपगेशन रिएक्शन। लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन. Termination is basically, termination means to end up. After when one of the reactant is completely consumed, कि for example bromine क्या हम कहते हैं कि ब्रोमीन कंज्यूम हो गया ओवरऑल, उस केस में how the reaction will end up, कि the reaction end up in can be terminated in 3 ways. कि basically two free radicals can combine, they can collide with each other to form a non-radical molecule, कि आपके पास two highly reactive species कोलाइड कर जाएं आपस में और आपके पास क्या फॉर्म कर दें, एक स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म कर दें, तो उस केस में जब फर्दर रेडिकल्स उसमें से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे तो हमारा रिएक्शन खुद से ही टर्मिनेशन की तरफ चला जाएगा। तो termination is a step in which free radicals react with each other producing non-radicals and terminating the chain reaction, और इन reactions के result में understood सी बात है कि फिर वो जो chain start हुई थी कि radicals further produce होते जा रहे थे, तो radicals अगर आपस में react कर जाएंगे तो उस केस में chain reaction क्या हो जाएगा, stop हो जाएगा, and as a result the reaction can be stopped in 3 ways, that 2 methyl radical react with each other, and these arrows show, what does these arrows show, that one electron from this radical, one electron from this radical, both of them will share their single electron, और हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो जो एरोज हैं यहाँ पे ये किसको शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, के ओवरऑल इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मतलब कि ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर हो रहा है, ठीक है। आपके पास द 2 electrons are being shared between 2 bromine atoms. As a result, a covalent bond is formed between bromine
between the two bromine atoms, and a bromine molecule is formed, and in the end that methyl can also react with bromine to form methyl bromide. एंड मेन जो आपके पास इवेंट हो रहा है इसमें वो क्या है कि रेडिकल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, नॉन रेडिकल्स में, कि हमारे पास रेडिकल्स आपस में, फ्री रेडिकल्स मीन्स फ्री रेडिकल्स रिएक्ट विद ईच अदर प्रोड्यूसिंग नॉन रेडिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीनेशन। अगर हम कहते हैं कि सेम स्टेप्स में क्लोरीनेशन देखेंगे तो दीज आर बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ द रिएक्शन। स्टेप्स वही हैं। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट two chlorine free radical will be produced, and half arrows are showing homolytic cleavage as well as the transfer of single electron to each of these two bonded atoms, और इस ट्रांसफ़र की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एंड सेकेंड प्रोपगेशन स्टेप है, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, वो मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा मजीद क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म क्लोरोमीथेन, एंड इन टर्मिनेशन स्टेप्स टू free radicals combine together to form non-radicals, and in this way the reaction is stopped. क्लोरीनेशन, अगर हमारे पास क्या है, स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया कंडीशंस के बारे में कि कंडीशंस हमारे पास क्या है, सप्लाई ऑफ क्लोरीन इज़ लिमिटेड, तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो क्लोरोमीथेन पे स्टॉप हो जाता है, और फर्दर हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस नहीं होते, वो सब्स्टिट्यूट नहीं होते। बट इफ़ दिस plentiful supply of chlorine is there, then the further substitution takes place, and as a result डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन भी फॉर्म होंगे। अगर हमने इसका मैकेनिज्म लिखना है तो बेसिकली ये स्टेप्स कहाँ पे आएंगे कि यहाँ पे ओवरऑल कि हाउ क्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एंड टेट्राक्लोरोमीथेन आर फॉर्म, दीज आर स्टेप्स आर बेसिकली पार्ट ऑफ द प्रोपगेशन स्टेप, कि प्रोपगेशन में ही फर्दर जो फ्री रेडिकल्स हैं वो मज़ीद जो प्रोडक्ट बन रहा है क्लोरोमीथेन उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। एज अ रिज़ल्ट सेकेंड हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर थर्ड को, और फिर फोर्थ वाले को। तो बेसिकली दिस डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोरीन यूज्ड। तो एक्सेस क्लोरीन के केस में फिर ये सारे स्टेप्स किस का पार्ट होंगे, फर्दर प्रोपगेशन के। जो हम फिलहाल तो हमने ओवरऑल जो रिएक्शन अपना लिया था वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन के लिहाज से लिया था स्टार्ट में जब ब्रोमिनेशन डिस्कस किया था, लेकिन इफ़ वी आर यूजिंग एक्सेस सप्लाई ऑफ क्लोरीन तो हमारे पास प्रोपगेशन में सिर्फ वही 2 स्टेप्स नहीं आएंगे। आपके पास क्या होगा कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्शन मिक्सचर के अंदर है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरो मीथेन के साथ, और क्लोरोमीथेन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा, मतलब कि ये हाइड्रोजन जो है इसका हाइड्रोजन फ्री सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके HCl के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। एज अ रिजल्ट द single electron is transferred to this carbon, and as a result free radical is produced, और free radical further क्लोरीन के साथ कंबाइन करके डाइक्लोरो ethane produce करेगा। तो these are the reactions for further chlorination of methane. So these will be part of the propagation step. Next, in the end, I have basically arranged an animation to help you understand the whole mechanism. Hope you enjoy this animation. Light or source of energy is used, and as a result the bond between two chlorine atom is broken and 2 has been converted to free radicals. Oh, he's so unstable. He's like this, highly reactive. And next, what's happening here in propagation? There are 2 possibilities that chlorine free radical may combine with the methane molecule. ठीक है, हाइड्रोजन के पास क्या, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और एज अ रिजल्ट मिथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर दिया। सेकेंड स्टेप, मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, क्लोरीन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा और क्लोरीन
सेकेंड क्लोरीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्री रेडिकल में। आपके पास हम ये कहेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया है। अगेन जिस फ्री रेडिकल से हमने क्लोरीन से स्टार्ट किया था और एंड पे भी फिर क्लोरीन खुद ही उस प्रोपगेशन स्टेप में जनरेट हो गया। लास्ट स्टेप, टर्मिनेशन। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ टर्मिनेशन। फर्स्ट इज दैट जी दोनों ही हाईली अनस्टेबल हैं, ठीक है, और तो कुछ मिल नहीं रहा उनको रिएक्ट करने के लिए, तो फिर वापस में ही रिएक्ट कर जाएंगे। ओके, ब्रिंग इट क्लोजर। And in this way Cl2 is formed. Second possibility, chlorine free radical can combine with methyl free radical, and as a result methyl chloride is formed. Third possibility, two methyl free radicals combine together to form ethane. So these 3 products can be formed, or these 3 products will basically end up our halogenation reaction, and in this way we will reach towards the end of our reaction. Hope you have understood the topic. Thank you.